आदाब नाजरीन, इस्लाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। वंदे भारत मिशन के तहत मरकज़ी हुकूमत गैर ममालिक में फंसे अपने शहरियों को वापस ला रही है, तो ट्रेन के ज़रिए अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को राहत देने का काम भी शुरू हो गया है। वैसे इसकी शुरुआत तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हो गई थी, लेकिन आज भी गरीब मजदूरों का मामला हल नहीं हो पा रहा। मरकज़ और रियासत हुकूमत की लाख दावों के बावजूद भी आज भी हज़ारों मजदूर पैदल सफ़र करने को मजबूर हैं। दक्कन की कई रियासतों से घर वापसी के दौरान नागपुर में ठहरे इन मजदूरों ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, तो मुंबई और दूसरे मुल्कों से आए लोगों ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो अभी भी मजदूरों का एक बड़ा तबका है जो पैदल अपनी मंजिल की तरफ जाने को मजबूर है। हालांकि सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से, रियासती हुकूमत की तरफ से लगातार लाख दावे किए जा रहे हैं, मदद के ये लाख दावे किए जा रहे हैं कि बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ा तबका है अभी मजदूरों का जो पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है और चले ही जा रहा है। भूखे पेट और नंगे पाँव ये लगातार अपने सफ़र को तय करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मजदूरों ने सरकार के पोल को खोल कर रख दिया है। चूँकि सरकार लाख दावे कर रही है, लगातार अपनी हुसूलियाबी के तौर पर इस बात को कह रही है कि उनकी सरकारें लगातार मजदूरों को वापस लाने में लगी हुई हैं, लेकिन नज़ारा अभी भी कुछ और ही बयां कर रहा है। Thanks to Vande Bharat mission and thanks to Modi ji who have come forward for the evacuation bill, and I have found the first flight to go back to India with my family. I can seek some medical help there. Thank you so much. This is Venkateshan working for WOCU. Last week my father passed away, so I need to be there for doing all the funeral kind of stuff. So I approached Indian Embassy regarding the travel to India. Thanks for Indian government arranging for this as quick as possible, because last 2 days before I approached Indian Embassy and registered in the portal, and they considered my request and did the needful for me. Thanks once again for the Indian government. I came to Manila on March 3rd, and I was supposed to leave in 15 days time, and the lockdown started. I was stuck here and I have medical issues and I needed medical treatment also. With all this, Indian Embassy helped us, and whenever evacuation started, they have been very cooperative. They have taken full care of our questions and answers, and they have been very kind. There has been a very good support from Indian Embassy in Manila. I came to Manila last year in March as I was working here with Asian Development Bank, but I was working on a contract and my contract got ended in March, and I got stranded here just before the lockdown, and I couldn't go back. For 2 months I have been staying at a friend's house, but right when a glimmer of hope came and I got an email from the Embassy of India that the Indian government are making arrangements for people to go back to India, and right at a time when all the hope was lost, I guess this was the time I have been looking forward to, just to go back to India. I really want to thank the Embassy of India and also Air India in making sure that all the people who are here stranded in Manila are getting back on time and also getting back safely to their places. And I hope that people who are stranded here in other parts of the Philippines and the world also could go back to their home safely. रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग साइकिल का सा कह रहा है। ये कागज भी बना है 5 तारीख को। रेलवे बोल रही, तेलंगाना सरकार बोल रही कि गाड़ी नहीं है आपका, बिहार का कोई आदेश नहीं है, इसलिए हम लोग साइकिल से आ रहे हैं। कहाँ से खरीदी साइकिल, कितने में खरीदी? 5000 में साइकिल खरीदे हैं हैदराबाद कच्चीपल्ली में। कितना दिन लगा यहाँ पहुँचने में? 3 दिन। कुछ साइकिल चला के आ रहा है, कुछ ट्रक से आ रहा है। कहाँ जाना है बिहार में? बिहार में वैशाली जिला जाना है। तो आपने संपर्क किया था वहाँ रेलवे के लिए? रेलवे के संपर्क किया, ये तो बोले कि कागज बन जाएगा। रेलवे पुलिस स्टेशन से गया, हम लोग बहुत भीड़ है,
बहुत है, एक पर एक आदमी चढ़ रहा है, लाखों लाख भीड़ है। बोलो आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन गाड़ी कहाँ मिल रही है? तो 5 तारीख की कागज बनाई हुई है, कोई सुविधा नहीं है। लास्ट में हम लोग देखे खाना पीना में दिक्कत हो रहा है, कभी चावल मिलता है तो सब्जी में हल्दी डाल के मिलता है, इसीलिए हम लोग को भागना पड़ा वहाँ से। चल है घर से पैसा मांगा के 4900 का साइकिल खरीदा। हम सिकंदराबाद से चल के आ रहे हैं, हम लोग को काम धाम कुछ नहीं मिला, खाने पीने को नहीं मिला, हमारा ठेकेदार पैसा भी नहीं दिया। कितने दिन से चल रहे पैदल? 4 दिन से चल रहे पैदल। कहाँ जाना है आपको? हमको बलौदा बाजार जाना है। कौन सा? छत्तीसगढ़। अभी कैसे जाएंगे यहाँ से? अभी जो सुविधा मिल जाएगी उसमें से जाएंगे सर। रेलवे की सुविधा की है सरकार ने, आपको कुछ जानकारी मिली थी इसकी? मिली थी, गए थे टिकट कटाने के, लेकिन 4 दिन से गए थे, थक गए, लेकिन पुलिस वाले मार मार के भगा देता था हम लोग को। झूठ बोल बोल के वो लोग टिकट खोलता था, 6 बजे से खोल देता था, 10 बजे आने बोल देता था, 6 बजे से खोल देता था, 9 बजे बंद कर देता था, और जाते थे तो डंडे से बहुत मार मार के भगा देते थे। हम लोग औरंगाबाद से चल के आ रहे हैं, हम लोग टोटल 12 लोग हैं, उसमें 3 लेडीज़ हैं और 7-8 जेंट्स हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। और हम लोग का काम बंद हो जाने की वजह से हम लोग को ना ही कंपनी ने पेमेंट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट वाला बोल रहा है कि मतलब बोला था देने के लिए, वो बोल रहा है कि अब हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम लोग फिर वहाँ से चले आए। और हम लोग ने मतलब सब कुछ मतलब ये जैसे जैसे उन्होंने बोला फॉर्म भरना है, मेडिकल करवाना है, हमने फॉर्म भी भरा, मेडिकल भी करवाया, थाने में भी जाके मतलब 2-4 बार बोले कि कम से कम हम लोग को परमिशन दे दो, हम लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं। तो लोग बोले परमिशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब जगह गए पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने बाद में आखिरी डिसीजन ये लिया कि जब नहीं कुछ हो रहा है तो एक काम करो, पैदल ही निकलते हैं। तो हम लोग पैदल ही निकल दिए, बीच बीच में अगर कोई गाड़ी वाला मिल जाता था तो बैठा लेता था, नहीं तो फिर पैदल यहाँ तक आए हैं। देखो, ट्रेन का अरेंजमेंट तो है जो स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है। कल तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि मजदूरों के लिए फ्री में टिकट मिलने वाली है, लेकिन आज यहाँ पे बस आप देख रहे हो, बस का व्यवस्था किया गया है और बस से लोग LTT जाएंगे, LTT से गंजाम जाएंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि 1.5 महीने पहले से जो लॉकडाउन हुआ था, करीबन 50 दिन हो गया है, इनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ लिंक किया, तब डिप्टी कलेक्टर ऑफिस से खाना आता था, कोई संस्थाएं कभी कभी डोनेट कर डालती थी। ये लोग सब जो है BPCL, HPCL, IOCL, RCF में काम करने वाले लोग हैं। करीबन माहौल गांव में 2500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में चले गए थे घर अपना। लेकिन आज सभी लोग अपने माता पिता को, लोगों का एक ही उद्देश्य है, कैसे हम अपने घर जाएं। और हम लोग इधर कमाने के लिए आया था, कुछ पैसा खा के, कुछ पैसा बचा के गाँव भेजने के परिवार के लिए। तो इधर ये कोरोना की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इधर काम धाम सब बंद हो गया और सब कुछ ये हो गया। तो हम लोग अभी इधर 2 महीना 1.5 महीना घर पे ही है, और हम लोग इधर मॉल पे रहता है, तो हम लोग को खाना पीना सब फ्री में मिलता है। और गांव जाने के लिए हम लोग को बहुत बेताब है, इसके लिए ट्रेन चालू नहीं हुआ। बहुत हम लोग कोशिश किया कि फॉर्म सब लेटर वेटर सब बनाया, तो ये लोग हम लोग का ये जो खाना पीना देते हैं वो लोग को, सब लोग को हम लोग को दिया, सब दे के ये लोग को कुछ करके हम लोग को गांव भेज रहे। और कर्नाटक के शांतिनगर से MLA NA हरीश ने केरल के मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया है। हुकूमत के दावों के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिलती देख कांग्रेस MLA ने केरल के लोगों के लिए बस का इंतजाम कर उन्हें रवाना किया। बस की रवानगी से पहले उसे कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी हिंदुस्तानियों को भाई बताया और जल्दी मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। Sorry for the hardship all of you are facing. About more than 40,000 people from Kerala have been registered. Almost 5 lakh and odd want to go out of Karnataka. But I request you to all come back again. We are there. India is one. Let us all fight this. You all are fighting for the mankind. Sorry for the inconvenience. We are there to support you in all matters.
इससे पहले कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार ने कर्नाटक हुकूमत पर मनमानी का इल्जाम भी लगाया। Unfortunate that the government want to help the MNCs. Initially, they may tell that we are going to get them a good price. The cooperative system, without consulting the farmers and all section of people, Karnataka is a state with a federal structure. It is not a central government here or not a central rule here. So as far as the Congress party is concerned in Karnataka, we are going to oppose this. We will fight in the interest of the farmers. This is not right. Number two, on the labor law. Let them give incentives to various industrialists. Let investments come to India. Let them help them. But taking out the labor against the International Labour Organization, including the BJP also, which has a labor wing, also has opposed this. This is very much against the labor system, and we all are opposing that. लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने को लेकर आंध्र प्रदेश में हंगामा शुरू हो गया है। सबसे लंबी कतार वाली रियासतों में शामिल आंध्र हुकूमत के खिलाफ टीडीपी की खातून विंग ने धरना शुरू कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ बताते हुए खातून लीडरान ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। वाज़ेह है कि मरकज से हरी झंडी मिलते ही कई रियासतों में शराब की बिक्री शुरू हो गई है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। महीनों की मेहनत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। The coronavirus pandemic is a global health crisis unlike anything we've ever seen before. One that is upending people's lives across the world and spreading human suffering. In India particularly, because of the lockdown, we've faced that millions of families are without any employment or without income, and many find it hard to even afford a meal. In this situation, the Andhra Pradesh government has decided to open up liquor shops and also increase the cost of liquor, especially cheap liquor, by 70%. What we're facing today is that middle-class families and lower middle-class families are the ones worst affected by this decision of the state government. You know, we're seeing in every single part of the state, we've been seeing liquor shops filled with people that are not participating in social distancing, they're not wearing masks or gloves, etc. They're not really following any of the lockdown protocols that have been enforced for 45 days. 45 days our people have suffered from the lockdown, and all of that suffering is now worth nothing because of this decision by the state government. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक कंपनी में हुए गैस लीक मामले को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। मैनेजमेंट समेत दीगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने से मकामी लोग भड़क उठे। पुलिस के लाख बचाव के बावजूद भी आसपास के लोग कंपनी में दाखिल होकर कार्रवाई की मांग शुरू कर रहे हैं और वाज़ेह रहे कि गैस लीक होने की वजह से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। LG Polymers gas leak incident has been done already 5 days over. Even after 5 days, the state government has not yet arrested the LG Polymers management. Unfortunately, on 9th May of all affected villagers gathered and entered in front of the gate, agitated against management as well as state government, and demanded immediately arrest the management and punishment them, and also demanded the state government should immediately announce about the close down of the factory or shifting of the factory.